Students, let us start third chapter. In this video, we will learn introduction of 3.1 and its exercise sum. Name of this chapter, pair of linear equations in two variables. Pair of linear equation in two variables. First of all, we discuss its topic. पेयर मीन्स डबल यानी जोड़ा टू कोई दो इक्वेशंस. लीनियर मीन्स 1 डिग्री. लीनियर मीन्स 1 डिग्री. x plus 5 equal to 0, y plus 3 equal to 6 या x plus y plus 3 equal to 7. So many examples which has 1 degree. Two variables. It means two unknown quantities. Two variable means two unknown quantities. You know, it's you can say that two alphabet, just like x and y, a and b, p and q, and so many another alphabet and equation. Left hand side and right hand. Something is left hand side, something is right hand side. Equations. Standard equation of this chapter, ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are coefficients, but a and b both cannot be equal to 0. You can say that a square plus b square not equal to 0. A square plus b square not equal to 0. It means a or b both cannot be 0. One may be 0, may not be 0. But both cannot be 0. You know, if both and both 0, then this here 0, here 0, x suppose some values 5 equal to 0, which is not possible. So a and b cannot be both at a time 0. Another example, 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 5x 2y plus 3 equal to 0. Now, how to find values of these equations? These equations already we shall learn something in 9th class, how to make graph. It is first degree equations, so always represent a straight line. Always represent straight line. First we have to learn how to represent algebraic equations and graphically. Okay. Now students, take another example. X minus 2y equal to 0, 3x plus 4y equal to 20. Pair मतलब two equations. दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी. तो इनकी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? दे आर इंटरसेक्ट दिस टाइप, दे आर पैरेलल, और सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट, नो एनी पॉइंट, और इन्फिनिटी वैल्यूज. यानी दो इक्वेशन के बीच में या तो एक वैल्यूज हो सकती है, यूनिक वैल्यू कह सकते हैं, या उन दोनों के बीच में कोई वैल्यूज नहीं होंगी जब वो पैरेलल होंगी. जब दोनों की सेम लाइन बनेगी. आपको ये सेम लाइन कैसे बन सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5 लेते हैं, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल 10 ले लेते हैं, तो दोनों की सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी. यू कैन सी दैट if by multiply 2 this equation, we will get this polynomial, this equation. So it has represented same straight line. Now we will learn first method, graphical method. Requirement of this sum, we have one graph. I make rough graph lines. X-axis horizontal line, x-axis vertical line, y-axis intersection point is origin. Coordinate of the origin 0 0. This is capital X
x dash, capital X dash, capital Y, Y dash. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant both positive, second quadrant x negative, negative positive, third quadrant negative negative, fourth positive and negative. First values represent x-axis values, second value represent y-axis. First also called abscissa, y ordinate, coordinate called ordinate. So represent first line x minus 2y on equal to 0 on graph paper. X minus 2y equal to 0, take minus 2y to right hand side, 2y, yani 2y equal x, y equal x by 2. We take x equal 0, then 0 upon something, 0. We take x equal to 2 upon 2, 1. Here we take 1 also, but 1 upon 2, हाफ का ग्राफ बनाना जरा डिफिकल्ट होता. मिनिमम हम 2 वैल्यूज लेंगे, मैक्सिमम 3 वैल्यूज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को हम 2 पॉइंट से बना सकते हैं. किंतु मैं आपको एडवाइस दूंगा आप 3 वैल्यूज लो. मैंने 2 ही वैल्यूज ली हैं, तो आप 2 भी ले सकते हो, किंतु 3 लेते हैं तो आपको जजमेंट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है नहीं करेक्ट है, या ग्राफ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की होगी. क्योंकि अगर तीनों पॉइंट 2 पॉइंट्स तो जैसे मर्जी भी आप लोगे उससे एक लाइन बन जाएगी, किंतु 3 पॉइंट जब लोगे तो अगर उनमें से कोई कैलकुलेशन या प्लॉटिंग पॉइंट गलत होगा, रॉन्ग होगा, तो स्ट्रेट लाइन बनने के चांसेस कम होंगे. सो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए, 0 and 2, देन वी विल गेट y 0 1. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 0. दिस इज ओरिजिन. सेकंड 2 1, x2 इस साइड पॉजिटिव 2, 2 की सीध में जब है y 1, तो 2 1 ये दोनों के मिलाओ. दिस इज रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन. इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन की भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. ये आपकी ग्राफिकल मेथड होगा और ये आपका अलजेब्रिकल मेथड होगा. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें 2 ही पॉइंट्स बताने हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बतानी है, और दूसरा ग्राफिकल दो लाइनें होंगी, दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है. उनकी कंडीशन क्या होगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या सेम लाइन होंगी, इनको इंसिडेंट लाइन जो होंगी. हमने वैल्यूज नहीं बतानी, दो ही पॉइंट्स बताने हैं. एक तो सिचुएशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, दूसरा उसी अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Students, now come to another example. Exercise 3.1, sum number 2. The coach of a cricketer team purchased 3 bats and 6 balls for rupees 3,900, and later he purchased another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1,300. Here we have to find algebraic equations and graphically equations. First we have to find algebraic equation. Suppose cost of a bat rupees x. मान लो एक बैट की जो कीमत है वो x है, एंड cost of a balls रुपीज y. एक की हमने x मान ली, एक की y. तो फर्स्ट 3 bats it means 3x and 6 balls it means 6y. 3x plus 6y इक्वल टू 3,900. इस प्रकार फर्स्ट केस में जो इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3x plus 6y इक्वल 3,900. सेम आफ्टर दिस ही परचेज अनदर बैट एंड 3 मोर balls, यानी x 1 बैट, x 3 ball, यानी 3y, x plus 3y 1,300. सेम काइंड 1,300. It is another equation. These both equations represented algebraic values of this situation. Now change into graphically. सबसे पहले हम फर्स्ट की बनाते हैं ग्राफ. 3x plus 6y equal 1,300. तो हमने 6y इस 3x को इधर ले गए, -3x,
6 नीचे, तो 1300 माइनस 3x अपॉन 6। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है इसलिए हम ग्राफ पर जो फर्स्ट स्मॉल स्क्वायर होगा यानी फर्स्ट साइड 100 फिर साइड 200 फिर 300 फिर 400 5 दिस साइड दिस पॉजिटिव, इसी प्रकार नेगेटिव नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस। तो हमने पहले एक्स के स्थान पे 100 रखा तो 300 3900 माइनस 300 3600 36 डिवाइडेड बाई 6 600 अगेन एक्स इक्वल 300 3 into 3 900 3900 माइनस 900 100 वी विल गेट 3000 अपॉन 6 यानी 500। तो मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स यूज कर रहा हूं, मोस्टली आप 3 यूज करना, क्योंकि 3 यूज करने से कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, किंतु 2 यूज करोगे आपके मार्क्स कोई नहीं कट होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, किंतु यहां पर अगर मिस्टेक होगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, टाइम कम है तो आप 2 पॉइंट्स लीजिए। तो सबसे पहले 100 600 x 100 सीधे में जाओ y 600 दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ अनदर 300 x एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 5 ठीक यहाँ पे 5 यानी यहाँ 5 है ये दोनों, इन दोनों पे मिलाओ और एक्सटेंड कर दो, ये होगी फर्स्ट लाइन की फर्स्ट सिचुएशन की लाइन। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है x प्लस 3y इक्वल 1300 यानी 3y 1300 माइनस x 1300 माइनस x अपॉन 3 वी यूज x 100 1300 माइनस 100 1200 अपॉन 3 यानी 400। फिर हमने x को 400 लिया 1300 माइनस 400 900 अपॉन 3 300। दोनों पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया जैसे 100 400 ये पॉइंट हो गया, दूसरा 400 थे, दोनों को हमने 300 यहां से मिलाया और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। किंतु यहाँ पर हमने 3.1 में यही बताना है। अगर हमें इनकी वैल्यूज बतानी होती तो हम कह सकते हैं इनकी यूनिक वैल्यू है, इसके नीचे यहाँ पे x आ जाएगा यानी x के बैट की कीमत 500 आ जाती है और इसकी सीट में आपको जाओगे तो बॉल की कीमत 200 आ जाते हैं। ये मतलब रफली ग्राफ है, किंतु आपने ग्राफ पेपर पर ही बनाना है। आप पेस्ट कर सकते हो होमवर्क नोटबुक पे भी, ग्राफ पर बना के उसको उस ग्राफ को पेस्ट कर दोगे। इस प्रकार आपने 3.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 3 सम कंप्लीट कर लेने हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज व्हेन वी हैव टू गिवन 2 linear equation in 2 variable. Okay, thanks, have a nice day, God bless us. Okay, thank you.